class we completed our topic buying an existing business, right? What are the advantages and what are the disadvantages? We already understand those points. So I just want to know what are the advantages if an entrepreneur will purchase an existing business. What will be the advantages? Can anyone want to tell me? Raise your hand. What will be the advantages? What will be the advantages if the person? Yes, Muskan. मैम एडवांटेजेस ये है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस का अपना प्रॉफिट चल रहा है, तो अगर उससे भी परचेज कर लेंगे तो सेम प्रॉफिट हमको भी मिलेगा। दूसरा एडवांटेज ये मैम कि उसमें पहले से पूरा प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो हम थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट हमको फुल्ली नया स्क्रैच से स्टार्ट करने का जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से जिन्हें जरूरत हो ट्रेनिंग दे सकते हैं, और सप्लायर्स भी एस्टेब्लिश्ड है, तो हमको अलग से सप्लायर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयज भी जो है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो उनमें से बस हमें अल्टरेशन करना होगा, बाकी सब एज इट इज हम यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, so basically these are the advantages when you are purchasing an existing business. These are the advantages for an entrepreneur. But even the most important thing, that the risk will be lower or that will be decreased because we are purchasing a running business. जब हम एक running business purchase कर रहे हैं तो कहीं हमारा risk भी कम हो जाता है, right? So we already understand about these points. In today's class, what we are going to understand, that is about how we will enter by franchising. ठीक है? So I'm using ing. How we are going to, how the entrepreneur will enter in the market by use franchising. इसको use करते हुए, इस process को use करते हुए कैसे वो market में enter हो सकता है. And the second thing which we are going to understand today, our success story जो हमारा है, that is about Shaadi.com. ठीक है? अब ये जो टॉपिक मैंने चूज किया है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी, मतलब ये रिसेंट की कंपनी नहीं है। When it was started, how it was started, and what is the current scenario, we are going to understand about it, right? Yes, Muskan? मैम आपने बोला था शार्क टैंक के बारे में बताइएगा। शार्क टैंक तो आई जस्ट नॉर्मली आस्क्ड कि शार्क टैंक देखते हो या नहीं। नो, शार्क टैंक के बारे में मैं क्यों बोली बेटा? When you are watching that, I don't need to elaborate it further, right? The Shark Tank, how what it is working, I can tell you that वो क्या करता है, that is a way of investing the money in the new creative ideas. But why I will tell you about that serial, I just normally asked. ठीक है? So let's start with the topic. आज का हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं with the franchising. ठीक है? What it is. So कितने लोग हैं जो मैकडी गए हैं, डोमिनोज गए हैं? Raise your hand. How many of you? मैकडी, डोमिनोज, KFC, नॉन वेजिटेरियन का फेवरेट प्लेस, ओके, कैफे हाइडआउट. So I guess so many of you already go to that place. So ये जो डोमिनोज है, आपने क्या देखा है चीज? डोमिनोज पटना में बहुत सारी जगह पे, इट इज इन बोरिंग रोड, इट इज इन इवन आई गेस TNM Mall, it is in Jagdevpur, it is nearby, it is even in Rajendra Nagar और आपका RPS Road. तो I guess 7 or 8 outlets इनके होंगे पटना में. तो क्या सोचा है कभी भी कि ये कैसे ये outlets expand हो रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं? एवो किस तरीके से increase हो रहे हैं? क्या इनको companies increase कर रही हैं? Yes, somehow they are also increasing, but the finance which is utilized for expansion, it is done by the individual or the group of people. What I mean by this, that franchising जो है, it is a contractual agreement and the franchisor is providing license to the franchisee to use their trademark. यानी यहाँ पर आपका जो franchising का जो पूरा concept है, ये एक तरीके से contractual agreement है, जहां पर फ्रेंचाइजर, अच्छा ये टर्म्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेट मी टेल यू दैट फ्रेंचाइजर कौन होता है। तो फ्रेंचाइजर वो है जो कंपनी है जो अपना ट्रेडमार्क
का लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर रही है ताकि आप भी उस स्टोर को, उस पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को यूज करते हुए अपने रिटेल चेन को ओपन कर पाओ, रिटेल स्टोर को अपना ओपन कर पाओ. So that is basically that company is known as franchisor who is the provider of the license. Franchisee जब हम बात करते हैं तो franchisee कौन है? The person or the group of people who is taking the franchise or license to start the new business or start or open the new retail store. So that is known as, उसको हम कहते हैं क्या? फ्रेंचाइजी, जो आपके लाइसेंस को लेती है और जो डिमांड करती है और आपके नाम से अपने बिजनेस को शुरू करती है. ठीक है, दैट इज फ्रेंचाइजी. दे आर फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजर हु आर द लाइसेंस प्रोवाइडर. अब एक और टर्म आता है एंड दैट टर्म इज बेसिकली फ्रेंचाइज. अब फ्रेंचाइज क्या है? सो इट इज अ लाइसेंस. अब फ्रेंचाइज जो लाइसेंस है, इसका मतलब फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को पास करता है या देता है. ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज अमॉन्ग ऑल दीज थ्री वर्ड्स. फ्रेंचाइजिंग इज द होल प्रोसेस in which franchisor is providing franchise, it means license to the franchisee. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी फ्रेंचाइजर जो है वो बेसिकली क्या करता है? अपने लाइसेंस को देता है दूसरे लोगों को जो भी उनके लाइसेंस को खरीदना चाहते हैं. इट इज नॉट डन एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव. लाइक मुझे आपके क्लास में किसी ने बताया था कि मैकडी जो है वो अपनी फ्रेंचाइज जो है वो बेचती है 50 लाख में. तो फ्रेंचाइज से आपको क्या बेनिफिट है? बीइंग अ फ्रेंचाइजी, व्हाट बेनिफिट यू विल गेट? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ब्रांड वैल्यू. ब्रांड वैल्यू आपको बना बनाया सेट मिल रहा है. अगर मैं बोलूं डोमिनोज जो है ना, वो चाहे पटना में अभी 5 और भी आउटलेट ओपन हो जाएगा ना, वो में नहीं होगा. डू यू नो व्हाई? कोई बताएगा मुझे क्यों लॉस में नहीं होगा? Can anyone tell me that if 5 more outlets will be open in Patna, then that is not going to be in loss? क्योंकि मैम गोल्डन पहले से बना हुआ है. मैम डोमिनोज का ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है और काफी टाइम से एस्टैब्लिश्ड है, तो पब्लिक पे उसको पूरा ट्रस्ट, मतलब पब्लिक को उस पे पूरा ट्रस्ट है. बिल्कुल. सो दे आर लाइक द ट्विंस. एक तरीके से जो फ्रेंचाइज है ना, वो आपको एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके देगी जहां पर आपको ऐसा फील होगा कि आप सेम ही कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो यूज कर रहे हैं. तो आपको कोई भी ना, एक बोल सकते हैं ना, वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट आपके लिए नहीं होगा, अनट्रस्टेबल सिचुएशन आपके लिए सामने नहीं आएगा. आप इजिली जो है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम डोमिनोज का पिज्जा खा रहे हैं. अगर कभी भी पार्टी करते हो तुम लोग, तो कभी भी ये चीज नहीं कहते हो. मुस्कान अब जैसे पार्टी कर रही है, दोनों मुस्कान आकांक्षा सब पार्टी कर रहे हो तुम लोग, तो यू आर नॉट गोइंग टू से कि हमने डोमिनोज खाया जगह पथ में और उसका ओनर ये है. कहते हैं क्या? नो मैम. No. We only want to say one thing, that we ate pizza in Domino's, right? So this is a brand value. तो अगर एक फ्रेंचाइजी है, जो एक पर्सन जो आपका लाइसेंस किसने लिया, वो पर्सन आपके ही नाम को यूज करेगा, ब्रांड लोगो को यूज करेगा और अपना आउटलेट ओपन करेगा. ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंचाइजर के लिए क्या फायदा? फ्रेंचाइजर के लिए सबसे पहला फायदा तो ये है कि दे विल गेट अ हेवी अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द लाइसेंस. जब भी वो लाइसेंस देते हैं तो वो 1-2 रुपया, 10 रुपए, 20 रुपए में नहीं काम चलता है उनका. दे आर टेकिंग अ वेरी हेवी अमाउंट फॉर गिविंग देयर brand value. They are not selling a license, they are not giving a license, but they are giving you brand value for which they worked a lot, right? So यहाँ पर 5-6 आप मान के चलो 50-60-70 लाख रुपए आपको एक बार में मिल रहा है, पैसा मिल रहा है. ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको प्रॉफिट होगा, पैसा मिलेगा. ठीक है, सेकेंड बेनिफिट है कि आप यहाँ पर एक्सपांशन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो. You are nothing, you are not investing, but you are getting. मतलब आप कोई भी चीज यहाँ पर नहीं कर रहे हो, यानी कि आप अपने पैसे लगाकर आउटलेट्स ओपन नहीं कर रहे हो. यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन आ रहा है, 2 पर्सन आ रहे हैं, आपसे लाइसेंस ले रहे हो और चला रहे हो उसको, लेकिन नाम और ब्रांड तो आपका है ना. तो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड वैल्यू और इंक्रीज हो रही है.
So you don't need to do the expansion work, but franchising this whole process will do it, right? तो ये आपका फ्रेंचाइजर के लिए ये बेनिफिट है, प्रॉफिट. सेकेंड थिंग, द ब्रांड इक्विटी और वैल्यू विल मोर इंक्रीज. ठीक है, कई जगह पे फ्रेंचाइजिंग में ना रॉयल्टी फीस इंक्लूडेड होता है, लाइक दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दैट यू आर यूजिंग द ब्रांड, सो यू जस्ट नीड टू पे द कमीशन इन अ ईयर. ठीक है, तो कई जगह पे रॉयल्टी फी होता है, कई जगह पे बल्क पे होता है, so that is totally dependent upon the companies to company it will be vary. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हिस्ट्री है ना फ्रेंचाइजिंग के, तुम लोग को लगता होगा ना ये अभी फिलहाल का हाल फिलहाल का ये स्टोरी है, फ्रेंचाइजिंग वाली जो स्टोरी हुआ, तुम लोगों को लगता होगा ये हाल फिलहाल की है, ऐसा लगता है? नहीं, ये पता है कब की है? 1860 में पीपल यूज दिस कॉन्सेप्ट फ्रेंचाइजिंग. जस्ट इमेजिन, मतलब 18वीं शताब्दी में भी द पीपल आर वेरी मच basically concerned toward the expansion and growth of the company, and the people at that time used it. So let me tell you some of the example of it. So franchising जो है ना, ये 1850 से भी पहले का कॉन्सेप्ट है. और इशाक सिंगर, अच्छा सिंगर तुम लोग में से कितने लोगों ने जानते हो कि ये क्या सेल करते हैं? इशाक सिंगर जो है वो क्या सेल करते हैं, कितने लोगों को पता है? How many already know about it? I guess radio. No. इशाक सिंगर इज फेमस फॉर मेकिंग शेविंग मशीन, जिसको हम कहते हैं सिलाई मशीन हिंदी में, घर पे हमारे जो होता है सिलाई मशीन. यस मैम, यस मैम. तो ये जो है इन्होंने अपने मॉडल में इम्प्रूवमेंट किया. मतलब इनकी मैं थोड़ी स्टोरी बताती हूँ. फ्रेंचाइजिंग जो है 1850 से भी पहले का है. इशाक सिंगर हु मेड इम्प्रूवमेंट टू एन एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ द शेविंग मशीन, मतलब अपनी शेविंग मशीन में उन्होंने कुछ मॉडल में चेंज किया. वांटेड टू इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन, और वो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते थे. तो इसी वजह से उन्होंने शेविंग मशीन के लिए फ्रेंचाइजी देना शुरू किया. अच्छा, फ्रेंचाइजी तो मैंने तुम लोगों को बताया होगा बहुत सारे टाइप्स है इसमें. एक तो मैन्युफैक्चरिंग की फ्रेंचाइजी होती है जहां पर आप सेम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हो. एक डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग की आपकी फ्रेंचाइजी होती है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को, बने बनाए प्रोडक्ट को कंपनी से उठाते हो और सेल करते हो. यहाँ पर दे बेसिकली प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रेंचाइजी इशाक सिंगर ने प्रोवाइड किया. बट ये स्ट्रैटेजी चली नहीं, मतलब दैट स्ट्रैटेजी वाज फेल्ड इन दैट टाइम. उसके बाद वो अनसक्सेसफुल रही, लॉन्ग रन में वो बहुत ज्यादा काम नहीं किया ये फ्रेंचाइजी इशाक सिंगर के लिए. उसके अलावा ये एक उनमें से पहले थे जो मतलब जिन्होंने एफर्ट डाला फ्रेंचाइजी के ऊपर. दिस इज द स्टोरी ऑफ, मतलब ही बिलोंग टू यूएस. एक और एग्जांपल है जॉन एस पेम्बर्टन का. सो इन्होंने क्या किया था, दे स्टार्टेड द फ्रेंचाइजिंग ऑफ द फेमस soft drink. Can anyone tell me which one? बताओ. कोका कोला. सो कोका कोला का इन्होंने भी फ्रेंचाइजिंग स्टार्ट किया था, एंड इट दैट वाज बेसिकली प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल. ठीक है, सो अर्लियर के ये सब एग्जाम्पल्स हैं. टेलीग्राफ सिस्टम के लिए, रेल रोड कंपनीज के लिए, मतलब बहुत सारे यूएस में फ्रेंचाइजिंग को यूज कर रहे थे, फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट को. ठीक है, और अपने फ्रेंचाइजिंग मोटेल्स के लिए 1930 में हॉवर्ड जॉनसन ने भी इसको मोटेल्स, फ्रेंचाइजिंग मोटेल्स के इन्होंने यूज किया था. तो इस तरीके से ही इंक्रीज द रेस्टोरेंट एंड डिनर्स एंड बहुत सारी चीजों को इंक्रीज करने के लिए वी यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंचाइजिंग. So basically franchise is not a new concept, but there is a lot of history related with this concept. Okay, can anyone tell me what is the advantages of franchising? Raise your hand. Yes, Muskan, roll number 27. मैम सबसे पहले तो कि ब्रांड बना बनाया मिलेगा, ब्रांड लॉयल्टी उसको मिल जाएगा. उसको मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा अपना, जो कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट उसका बहुत कम, मतलब कम लगेगा. वेरी गुड. ओके, एनीवन एल्स? चलो, तो यहाँ पर मैं ना तुम लोग को एक चीज बताती हूँ कि दिस इज बेनिफिशियल फॉर बोथ फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी. तो दोनों के बेनिफिट्स को देखते हैं. तो फ्रेंचाइजी के लिए सबसे पहला जो बेनिफिट है वो क्या है? आशीष, रोल नंबर 1. आशीष, Ashish, roll number 1. Okay, is not connected to the audio yet. Ashish, roll number 1.
Yes, ma'am. What is the timing of the class? I'm sorry. So first of all, if we are talking about the advantages for the franchisee, so first thing is brand equity, brand value. Second thing is no need to do the advertisement. Muskan said well, बिल्कुल भी advertisement करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. थर्ड थिंग, ट्रेन्ड एम्प्लॉइज. यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज होती है ना फ्रेंचाइजिंग में, कि जो फ्रेंचाइजर होता है ना वो पैसा आपसे जरूर लेते हैं, लेकिन वो अपनी वैल्यू को डिटोरिएट नहीं करने के लिए ना, वो अपनी कोई भी, जिसको भी फ्रेंचाइजी, जिन्होंने भी फ्रेंचाइज लिया है ना, उनको ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं. जैसे तुम लोग को क्या लगता है कि जो डोमिनोज में हम पिज्जा खाते हैं, जगदेव पथ में खाएंगे या फिर हम जाकर खाएंगे गोला रोड के पास, टेस्ट में कोई अंतर पता लगता है क्या? टेस्ट में कोई डिफरेंस लगता है? नो मैम, टेस्ट में डिफरेंस नहीं. हाँ, वो थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ चीज में थोड़ा सा डिफरेंस कभी कभी नजर आ जाता है, लेकिन टेस्ट में डिफरेंस नजर नहीं आता है. सो why they are doing so? Because standardization is a very important fact which the franchisor is using, and the franchisor want to continue it in that franchise sense. मतलब फ्रेंचाइज भी अगर वो दे रहे हैं ना, तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए. अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क देने का मतलब ये नहीं है कि अब भाई जो जिसने ट्रेडमार्क लिया है वो कुछ भी करे चलेगा. नो, यू हैव टू फॉलो द पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस. एंड आपका जो टेस्ट है, अगर आप फूड बना रहे हो, फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हो, रेडी टू ईट आइटम्स बना रहे हो, तो उसका टेस्ट सिमिलर होने के लिए दे आर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एज वेल. सो द ट्रेनिंग फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर. So you don't need to incur extra cost. यहाँ पर आपको पैसे बहुत ज्यादा कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ट्रेनिंग के लिए वो आपको फ्रेंचाइजर देगा. आप अपने एम्प्लॉइज को रखिए, एम्प्लॉइज जो है उनको ट्रेनिंग देने का काम फ्रेंचाइजर का होगा, ठीक है. तो दीज आर द बेनिफिट फॉर द फ्रेंचाइजी. सेल्स बहुत होगा, प्रॉफिट होगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में जैसी कंपनी की सिचुएशन रहेगी वैसे ही आप बेनिफिट आपको मिलेगा. लेकिन ये तो हो गए बेनिफिट फ्रेंचाइजी के लिए. नाउ फ्रेंचाइजर का क्या बेनिफिट है? एक्सपेंशन हो रहा है, नो कॉस्ट पे एक्सपेंशन, कोई पैसा नहीं लगा रही है कंपनी, एक्सपेंशन हो रहा है. सेकेंड थिंग कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ लॉयल कस्टमर्स जो होंगे वो इंक्रीज होंगे, ठीक है. तो फ्रेंचाइजर के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट है. अब एक बहुत सारे कॉमन कॉन्सेप्ट बता दिए तुम लोगों को. अच्छा, याद रखिएगा कि फ्रेंचाइजिंग इज टोटली डिपेंड अपॉन द टेरिटरीज. इन टेरिटरी से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज है. पता है क्या पॉलिसीज है टेरिटरी से रिलेटेड? जैसे मान लो कि ये आपका मार्केट है, ये हम बेली रोड का मार्केट ले लेते हैं, ये आपका बेली रोड का मार्केट है इतना बड़ा, ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है. अब इस बेली रोड के मार्केट में आपका राजा बाजार है, जगदेव पथ है, श्याना है, ऐसा है. तो जगदेव पथ और अशाना कितना ज्यादा नियर बाय है, तुम लोगों ने देखा होगा ना. मतलब अशाना खत्म होता है, जगदेव पथ शुरू हो जाता है. और उस तरह से देखा जाए तो जगदेव पथ स्टार्ट मतलब खत्म होता है, अशाना शुरू हो जाता है. लाइक अब यहाँ पर एक डोमिनोज जो है दैट इज हियर इन द जगदेव पथ, ठीक है. अब डोमिनोज जगदेव पथ में अवेलेबल है, और यहाँ पर अब जस्ट इमेजिन करो कि बिल्कुल आधा किलोमीटर के दूर पे आपके अशाना में एक और डोमिनोज ओपन हो गया, ठीक है. ये क्या लगता है, ये बेनिफिशियल कंडीशन है या फिर ये लॉस कराएगा? कोई मुझे बताएगा कि आधा किलोमीटर के अंदर एक और स्टोर ओपन हो गया, तो यहाँ पर लॉस होगा. पता है क्यों? इंटरनल कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कंपनी ही आपस में क्या करना स्टार्ट करेंगी, कंपीट करना शुरू करेंगी. कभी कहानी पढ़ना तुम लोग उसका किंगफिशर का, जो आपका जेट था, उसकी केस स्टडी कभी कराऊंगी तो उसमें भी यही सीन था. तो खैर वो उसका अलग ही सिचुएशन है, छोड़ो. तो ये टेरिटरी वाला प्रोविजन के बारे में मैंने इसीलिए आप लोग को बताया कि अगर आप फ्रेंचाइज परचेज कर रहे हो, ले रहे हो कंपनी से, तो कंपनी आपको से एश्योरेंस चाहती है कि वहां आसपास कितने दूर पर आपका स्टोर नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर जगदेव पथ में डोमिनोज का स्टोर ऑलरेडी है और उसके जस्ट नियर बाय आप अपना एक और स्टोर ओपन कर दोगे, तो अब यहाँ पर जो नियर बाय जितने कस्टमर्स है ना, दे विल गेट टू ऑप्शन. या तो वो जगदेव पथ में चले जाएंगे, या तो फिर आप वो आपके अशाना वाले स्टोर में चले जाएंगे.
सो टेरिटरी जो होना चाहिए, डिस्टेंस जो होना चाहिए आपके दो फ्रेंचाइज स्टोर्स में, फ्रेंचाइजी का ये जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है। फ्रेंचाइजर हमेशा आपके लोकेशन, ये सब डिसएडवांटेजेस में कुछ मतलब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फ्रेंचाइजर के लिए भी डिसएडवांटेज है और फ्रेंचाइजी के लिए भी डिसएडवांटेज है। तो फ्रेंचाइजी के लिए क्या डिसएडवांटेज है ना, पहली चीज ये कि वो लोकेशन, अनसुटेबल लोकेशन पे वो कभी भी अपने स्टोर को स्टार्ट नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते। जैसे कभी भी आप नोटिस करना, जो भी आपका फूड चेन है वो हमेशा रश वाले एरियाज में, मार्केट एरियाज में अवेलेबल होगा। कभी देखा है कोई गली में, कोई लोकेलिटी में या फिर कोई कॉलोनी में देखा है क्या किसी ने भी डोमिनोज पिज्जा? नहीं देखा ना? वाई? वाई? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। बिकॉज वो ऐसे एरियाज में चाहते हैं कि ओपन हो उनका स्टोर, फ्रेंचाइजर खुद है, ताकि उनका सेल हमेशा एक लेवल उसका बना रहे। ठीक है, तो आप कभी भी आपके लोकेशन को इंस्पेक्ट करेंगे तब जाकर के आपको फ्रेंचाइज जो है वो देंगे वो। ठीक है, सेकेंड चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली ये है कि फ्रेंचाइजर का एक पॉलिसीज और प्रोविजन है कि आप जो हैं आप उनकी क्वालिटी को मेंटेन करोगे। अगर आप चाहो तो आप कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हो। अगर आपके पास मेन्यू है, अब मैकडी का मेन्यू उठाओ, मैक बर्गर है, मैक चिकन है, मैक एग है, ये सब उनके बेसिकली मेन्यू है। अब तुम उसमें ना लिट्टी चोखा और ना छोले कुलचे नहीं ऐड कर सकते हो। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो देयर इज अ रिजिडिटी, मतलब रिजिडनेस है आपके इस स्टेप में। ठीक है, तो आपकी फ्रेंचाइजी के में डिमेरिट पे थी, तो सबसे पहला मतलब यही सब लॉस है कि रिजिडनेस है, चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि कंपनी के प्रोविजंस को मानना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइजेशन को मानना पड़ेगा, मेन्यू के प्राइस तक भी सेट होते हैं, प्राइस भी यू कैन नॉट चेंज, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच द फ्रेंचाइजर हैव टू फेस। अब फ्रेंचाइजी को ये फेस करना पड़ता है। फ्रेंचाइजर के लिए क्या लॉस? देखिए क्या होता है कई बार कि देखो फ्रेंचाइजर ना फ्रेंचाइज दे तो देता है आपको, और आप कहते हो हाँ क्वालिटी भी मेंटेन करेंगे, या हाइजीन की प्रॉब्लम हो रखी है। बहुत सारे स्टाफ जाओगे जहां पर डोमिनोज का, मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, लाइक डोमिनोज का कार्टन जो जिसमें पिज्जा देते हैं वो, दैट इज इवन देयर ऑन द टेबल एंड नो वन इज गोइंग टू रिमूव इट। सो दिस इज नॉट डोमिनोज स्पीकिंग अबाउट कि भाई आप ऐसा करो। ठीक है, सो क्वालिटी की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजर ने देखा है कि ये कहीं ना कहीं उनके ओवरऑल पूरे ब्रांड पे वर्स्ट इफेक्ट डालता है, डेटोरिएट कर देता है क्वालिटी को। अब हुआ तो ये चीज आपके साथ एक स्टोर में है, बट यू आर गोइंग टू जज होल स्टोर इन दैट वे ओनली। सही बात है? क्लियर है? तो क्वालिटी डेटोरिएशन का बहुत हाई चांस है। अच्छा, फ्रेंचाइजी के लिए एक और मैं टर्म यूज करूंगी, हाई मतलब टर्मिनेशन भी कभी भी एग्रीमेंट का हो सकता है। सो देयर कैन बी द टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट। यस, वंस द एग्रीमेंट विल बी डन, उसके बाद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं किया ना तब तक कैंसिलेशन के भी चांसेस बहुत हाई हैं, याद रखिएगा। और अगर आप प्रोविजंस और पॉलिसीज नहीं मानोगे ना तो टर्मिनेशन भी टर्मिनेट कर देगी कंपनी, आपको लाइसेंस आपका ले लेगी। ठीक है ना? सो दैट कैन बी पॉसिबल। तो ये फ्रेंचाइजी के लिए बहुत मुश्किल वाला सिचुएशन आ जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अभी भी आप एक कंपनी पे ही डिपेंडेंट हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए। आ रही बात समझ में? फ्रेंचाइजर के लिए और क्या लॉस हो सकता है? एक तो क्वालिटी डिटेरिएशन का बहुत हाई चांस है, क्योंकि अगर वो मेंटेन नहीं कर सकते, लैक ऑफ स्टैंडर्ड, और एक कस्टमर सर्विस की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर आप कोई भी देखो, क्वालिटी टेस्ट of the product can be same, but they are not giving the surety that the service will be same everywhere, है ना? So some people are very much rude, even in the Domino's they will start speaking in the rude way, right? So deterioration of quality and the service can be possible, and that is going to impact overall company. So franchisor के लिए ये सारी चीजें हैं जो लॉस करवा सकती है, लॉन्ग टर्म में उनको ये नुकसान कर सकती है। ठीक है, so I guess for today's class these points are clear to all of you. क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। समझ में आया? मैम फ्रेंचाइजी के लिए क्या लॉस होगा? फ्रेंचाइजी के लिए तो लॉस है ना कि आप मेन्यू में चेंज नहीं कर सकते हो, रिजिडनेस है,
स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना पड़ेगा, पॉलिसी मानना पड़ेगा। कुछ और अलग नहीं ला सकते हैं, प्राइस चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप मान लो कि तुमने पंजाब में जाकर के डोमिनोज ओपन कर दिया, ठीक है, अभी पंजाबी लोग का फेवरेट डिश क्या होता है? मुस्कान, तुम तो बता सकते हो मुझे ये बात। फेवरेट छोले भटूरे मैम, लस्सी मैम, लस्सी लस्सी तो पीने वाला। राजमा चावल, राजमा चावल, वेरी गुड, राजमा चावल, क्योंकि मुझे मुझे बहुत पसंद है पंजाबी फूड, मैं बहुत खाया है, तो राजमा चावल, छोले भटूरे, है ना, मक्के की रोटी होता है, ठीक है, मक्के की रोटी, सरसों का साग। तो ये सारी चीजें जो है, क्या डोमिनोज में ऐड कर सकते हैं हम? मुस्कान, बताओ मुझे। नो मैम। So we are not able to satisfy the need of the local customers. That is the truth, and that is the one of the factor. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, समझ रहे हो ना? अगर आप जिस एरिया में हो और उस एरिया में जो लोगों को जो पसंद है, देखो पीपल आर वेरी मच रिलेटेड विद देयर ट्रेडिशनल फूड। मतलब हमें वो बहुत पसंद है, लिट्टी चोखा, वी लव इट ना, so we are very much attached, but that such kind of flexibility is not available if you are purchasing franchise. Like KFC में लस्सी बेच नहीं सकते भाई, बेच सकते हैं क्या? नहीं, because the menu will be decided by the company only, and if there is any changes or addition which is made, that will be done for overall every outlet, right? So this is a very major loss जो है ये, और टर्मिनेशन का भी बहुत ज्यादा चांस है। एग्रीमेंट कैंसिल भी हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है आपका एग्रीमेंट। आप बिजनेस चला रहे हो, टर्मिनेशन हो गया बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन। हाँ, उनके पास बहुत बेसिक, बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए टर्मिनेशन के लिए, लेकिन अपना अगर बिजनेस शुरू करोगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जहां पर आपको कोई टर्मिनेट कर दे। करेगा क्या कोई? नहीं ना। तो आप हेवली डिपेंडेंट हो जाते हो कंपनी पे जब आप फ्रेंचाइज लेते हो उनका। समझ में आई बात? फ्रेंचाइजी के लिए क्या क्या लॉस और डिसएडवांटेजेस है मुस्कान? यस मैम। क्लियर है? अच्छा, इसी बात से मैं पूछ ही लेती हूँ कि पाव भाजी कहाँ का डिश है? मुंबई, महाराष्ट्र मैम। महाराष्ट्र। वहाँ पे बड़ा पाव भी ज्यादा अच्छा लगता है। बड़ा पाव, मिसल पाव एंड पाव भाजी, ऑल दीज वॉट एवर रिलेटेड विद द पाव, दैट इज फ्रॉम महाराष्ट्र। चलो, और बिहार का? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। चलो, ये सब बात पे अब खाने का मन करने लगा होगा, है ना? चलिए हम जी लोग मैम। अच्छा, डोसा कहाँ का है? साउथ इंडिया। तमिलनाडु। साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया, गुड। चलिए, ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज सक्सेस स्टोरी। So I'm not promoting, but I just want to tell you, if any one of you want to become an entrepreneur, so please go and watch Shark Tank. It is going to help you that how you can do the business and what kind of creativity is done around us. हमने कभी सोचा भी नहीं है उस तरीके की क्रिएटिविटी हो रही है। So you will get so much knowledge from that serial. Just leave the Daily Soap serial and just go and start watching that. So today's, हाँ बिल्कुल। तो चलिए, आज की जो सक्सेस स्टोरी है, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। व्हाई? बिकॉज इट्स अबाउट Shaadi.com. Shaadi.com. It's about marriage. See, India is full of culture. We are totally based on the tradition. We are purchasing jewelry, मतलब because of the marriage. So for India, it's not about the India only. For every country, the marriage is something which is मतलब एक बहुत important perspective, मतलब बहुत important एक part है लाइफ का। So Shaadi.com, इसका जो नाम है Dreams into Reality, when it was started, let me tell you, this company is of 90s, मतलब 1996 से इसकी स्टोरी शुरू हुई। अभी तक मैंने जितनी भी कंपनीज कराया है, चाहे पेपरफ्राई हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, या फिर आपका जोमैटो हो, बिग बास्केट हो, ये लगभग सब 2000 के बाद की कंपनीज है। लेकिन ये जो कंपनी है, ये आपकी 1996 की कंपनी, ठीक है। अब this person, his name is Anupam Mittal, and this person is a founder of the People Group, and People Group का ही पार्ट है आपका Shaadi.com, ठीक है। सो इंडिया का एक बहुत ही भरोसेमंद, ट्रस्टेबल मैट्रिमोनियल साइट है ये, और ये
उन लोगों के लिए है, द पर्सन हु इज अ वेरी, बोल सकते हैं ना कि हु इज बेसिकली लुकिंग फॉर द कंपैटिबल पार्टनर, राइट? So this site is working for those people. ठीक है? So how the story began? Let's start with it. Let me tell you about something about the Anupam Mittal. He born in 23rd December 1979. Education, basically he did MBA from Boston College from USA. And is the founder and CEO of People Group, and now its net worth जो है इसका लगभग $25 million का नेट वर्थ है, ठीक है? एंड इन्होंने इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री के, मतलब अनुपम मित्तल जो है फाउंडर है पीपल ग्रुप के लिए, और ये इंडिया का वेल नोन इंडिया ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। मित्तल जो है का वैल्यूएशन जो है ये 10 फोल्ड में हुआ है लास्ट कपल ऑफ इयर्स में, लगभग 40 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है इनका, ठीक है? So यहाँ पर Shaadi.com, Ola Cabs, Makaan.com, these things are basically belong to the People Group. So अनुपम मित्तल जो है उन्होंने कैसे शुरू किया, how he started such kind of particular services for the people. So अनुपम इंडिया में वापस आए, पढ़कर MBA कंप्लीट हुआ, he returned, ठीक है? वो अपने फादर के ऑफिस में एक दिन बैठ करके अपना, वही उनके फादर जो है उनके ऑफिस में बैठे हुए थे और वेब डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर ये लोग काम कर रहे थे, मतलब बात कर रहे थे अपना। और उसके अलावा इनके पास बहुत सारा चीज कुछ करने के लिए था नहीं, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करके यूएस से वापस आए थे इंडिया में। एट द सेम टाइम इनके साथ क्या हुआ कि इनका, मतलब ही रैन अक्रॉस वन ऑफ दोज ओल्ड स्कूल मैच मेकर्स हु विल गो टू एनी लेंथ टू गेट यू मैरिड। तो फिर इनको एक पर्सन मिला, मैं बता देती हूँ, इनका कोई पर्सन आया जो इनके फादर को बताने लगा कि अबाउट द, कि कैसे मैरिज वगैरह किससे करवा सकते हो आप अनुपम का। तो ये चीज इनके साथ हुआ। तो ये फिर अनुपम, ही वाज नॉट रेडी फॉर मैरिज, एंड व्हाट ही स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट दैट मींस आई जस्ट वांट, मतलब उनका एक अलग दिमाग में था कि मैं इससे शादी करूंगा, इससे शादी करूंगा, लाइक दैट। So he understand that nowadays if you want to get married, it's better to get the person who is very compatible, and this way of informal, जैसे चाची दादी और नानी जो हमारे लिए रिश्ते लेकर आती, it's not going to work. And then after that he basically want to rid of the matchmakers. So that is how he understand about the virtual matchmaker के बारे में इनको समझ आया, and he started basically working for this Shaadi.com company. Let me tell you, earlier the company name was the Sagai.com. इसका नाम था Sagai.com. Then in 1999 he changed its name and he converted it into the Shaadi.com, right? He invested all of his money, जो भी सेव किया था इन्होंने, जो भी चीजें थी, सारी पैसे इसमें ही लगा दिया इन्होंने, ठीक है? एंड उस समय एक ऐप चल रहा था, बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है? वो क्या था बताती हूँ, दैट इज ShariaSP.com, ठीक है? तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ये यूएस में चल रहा था, यूनाइटेड स्टेट में ऐसा कुछ वेबसाइट था जो चल रहा था, और यहाँ पर लाइफमेट्स वगैरह से यूएस में ये चल रहा था, ये इंडिया में नहीं था, यूएस में था। तो इन्होंने उनसे भी आइडिया को ग्रैब किया, और उसके बाद फिर दे स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है? एंड जो आपके 1996 में मैंने बताया था, इट वाज फाउंडेड इन 1996 एंड लेटर ऑन इट वाज बेसिकली, फिर बाद में मतलब दे टेक द ऑप्शन और आइडिया फ्रॉम द शारिया एंड फ्रॉम दैट इज ऑफ द यूएस। ओके, let me tell you about more about it. So it's not working or what? Wait for a second. Yes, so he got the opportunity and that opportunity he grabbed. जब opportunity मिला तो he basically grabbed, ठीक है? एंड अनुपम जो है उन्होंने बाद में लॉन्च किया एक Makaan.com, और ये भी एक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने ये भी स्टार्ट किया। टॉप मीडिया, मोबाइल मीडिया फॉर्म मौज मोबाइल, इन्होंने ये भी स्टार्ट किया था। तो उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया पीपल ग्रुप में, और फिर वो एक एंजल इन्वेस्टर बन गए, और उसके बाद बिग बास्केट, इंटरैक्टिव एवेन्यू, ओला कैब्स, ध्रुवा, फैब होटल, प्रॉप टाइगर, डॉक्स ऐप, रुपीक, इन सब में इन्होंने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किया है। ही इन्वेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, एंड अभी शार्क टैंक में तो पता नहीं कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है? सो एंड मैं बता दूं कि वो बहुत ही इंथुसियास्टिक थे,
एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और इनोवेशन के लिए। और अनुपम जो है वो को चेयर भी हैं H2 इंडिया के और फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं वो IAMAI के। IAMAI क्या है आपका, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वो चेयरमैन भी रहे हैं। अनुपम मित्तल जो है 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में बिजनेस में इनका नाम आया है। सोशल सीरियल एंटरप्रेन्योर है। एंजल इन्वेस्टर का मतलब होता है जो दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो बिजनेस पर्सन दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट पर्सन इज द एंजल इन्वेस्टर। तो और इनको करमवीर पुरस्कार भी मिला है फॉर अवार्ड ऑफ द सोशल जस्टिस एंड सिटीजन एक्शन। एंड ये इंडिया का सबसे नंबर 1 मैट्रिमोनियल साइट चलाते हैं, दैट इज शादी.com। तो इसकी वजह से भी इनको इस चीज के लिए भी मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब इन्होंने मतलब शादियां करवाई हैं, सो दैट इज वन ऑफ द अचीवमेंट फॉर दैट। Let me tell you about the challenge. When he started this business now, no one think about such kind of business can exist. Because see, we are living in that society where the Indian parents are very conservative. They are not going to allow, I am just normally speaking about it, that we all knows about the parents, that what kind of scene, what kind of mentality they have, right? So basically Anupam faced that challenges. Earlier the people are hesitated to use such kind of website because the people have no trust over it. Like internet की basis पे कैसे शादी करा दे बच्चों की, it is not possible. So such kind of problem he faced. तो starting में इनके जो customers थे ना वो पता है कौन होते थे, NRIs होते थे, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। अब नॉन रेसिडेंट इंडियंस पे कौन होते हैं, तो NRIs वो होते हैं जो इंडिया में 182 डेज से कम स्टे करते हैं, तो दे आर NRIs। कुछ लोग होते हैं बाहर चले गए पढ़ने के लिए। फाइनेंशियल ईयर का मतलब और एक कैलेंडर ईयर, ये भी बता देती हूँ। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो फाइनेंशियल ईयर में जो 182 डेज से कम रहते हैं उनको NRI कहते हैं, तो जो बाहर इंडिया के रहते हैं। तो NRIs जो थे दे बिलीव्ड ऑन दिस ऐप एंड मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स थे वो इनके ऐप मतलब इनके वेबसाइट को यूज करते थे। NRIs जो थे उनके पास भी रीजन था क्योंकि उनका ज्यादा टाइम इंडिया में स्टे करने का कुछ होता नहीं था, एंड इफ दे वांट टू गेट मैरिड दे हैव टू डू द वेरी क्विक प्रोसेस। So basically they believed on Shaadi.com, but if we are talking about the Indian parents at that time, they are hesitated to use such kind of website. So this happened. और अभी अगर मैं बात करूं तो आपका लगभग 12,000 से 15,000 हर दिन साइन अप होता है, सोचो, ठीक है। How it is working? Like it is one of the trustable thing. Why this word is used trustable? Because marriage is something which is totally going to affect the life of the person, right? So many people are doing the fraudulent activities, like they are making the fake IDs and fake identity बना करके वो अपना प्रोफाइल बना देते हैं। तो Shaadi.com ना they started using the technology to remove those fake ID, मतलब उन fake IDs को हटाने के लिए they use the technology। उसके अलावा they are taking the photograph of the person and they are taking the personal detail and they are basically showing it to the particular वेबसाइट। नाउ दे हैव देयर एप्लीकेशन एज वेल, तो आप एप्लीकेशन भी यूज किया जा सकता है इसका, ठीक है। तो हिस्ट्री तो मैंने आपको बता ही दिया कि व्हाट वाज द हिस्ट्री एंड हाउ इट वाज वर्किंग। तो 5 से 6 घंटे में द फोटोग्राफ इज गोइंग टू बी अपलोडेड एंड दैट इज टोटली, अर्लियर दैट वाज टोटली मैनुअल प्रोसेस बट नाउ इट इज टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, ठीक है। अभी के अराउंड इनके पास लगभग 400 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है जो इनके लिए काम कर रहे हैं। दे आर बेसिकली रिलेटेड विद दिस कंपनी एंड दे हैव ऑटोमेटेड फीचर्स। इनके पास फेक प्रोफाइल, जेंडर मिसमैच कुछ भी होता है तो दे आर बेसिकली रिमूविंग दोस पर्सन। और मैंने आप लोगों को बताया था ना, दे हैव अ एल्गोरिथम ऑफ द Amazon रिकॉग्निशन टू आइडेंटिफाई दिस यूजर बिहेवियर। तो इनके पास Amazon रिकॉग्निशन एक सॉफ्टवेयर भी है जहां पर फेक प्रोफाइल को ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और अभी इनका पूरा का पूरा जो काम है टेक्नोलॉजी फीचर है, 95% जो फोटो स्क्रीनिंग वगैरह होता है दैट इज इम्प्रूव्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल फीचर्स। What amount they are charging for such kind of service? See, it's a totally service based, ये पूरा का पूरा सर्विस है, ठीक है। So amount what they are charging, इनका एक मेंबरशिप प्रोग्राम है। मेंबरशिप इनका एक फी है, आप देखते हो, लाइक दे हैव अ 12 मंथ प्लैटिनम अगर आप लेते हो तो दैट इज 7,900, 12 मंथ प्लस तो 7,900 प्लैटिनम है। मतलब सर्विस के अकॉर्डिंग दे हैव द प्लान सर्विस के हिसाब से देते हैं। सबसे कम वाले में आपको उतना ही कम सर्विस मिलेगा एंड दे आर इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द
मैक्सिमम प्राइस प्लान के हिसाब से वो सर्विसेज को भी इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, इनका जो बिजनेस मॉडल है ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, कोई भी आराम से यूज कर सकता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पर्सनल डिटेल जो है वो सिक्योर्ड रहता है, वो किसी भी और जगह पे वो मूव नहीं करेगा। यस, इट विल बी मूव टू, अगर ब्राइड है तो उसका ग्रूम की तरफ मूव कर सकता है, ग्रूम है तो उसके ब्राइड के दैट कैन बी मूव, बट इट इज नॉट गोइंग टू मिसयूज बाय एनीवन। सो देयर इज अ गारंटी ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन एज वेल। ठीक है, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए इन्होंने कुछ अभी बहुत सारे इनके सेंटर्स भी हैं, मतलब फिजिकल सेंटर्स भी हैं इनके, और लगभग 70 इंडियन सिटीज में इनके लगभग बहुत ज्यादा, मतलब 100 से भी ज्यादा इनके सेंटर्स अवेलेबल हैं। और इनका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा दे वर्क फॉर द सोशल कैंपेनिंग का भी इन्होंने काम किया है। सी, we all knows about the social evils like the dowry system, the child marriages and all, so they started doing campaigning as well. अब इन्होंने डाउरी कैलकुलेटर को यूज किया है और इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से डाउरी लेकर के दे आर बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग द ग्रुप ब्राइड साइड और ब्राइड पेरेंट्स, so they have a dowry calculator as well that is demotivating the people to take dowry, right? डाउरी को हिंदी में दहेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 35 कंट्री ने उनके इस पर्टिकुलर कैंपेन को सराहा है, एप्रिशिएट किया है। और इन्होंने भी हाल फिलहाल में एक लॉन्च किया है गेम, इज एंग्री ब्राइड। मैंने भी एंग्री बर्ड्स पढ़ा, आप लोगों में से कितने लोगों ने एंग्री बर्ड्स पढ़ा इसको? एंग्री ब्राइड है ये, इट्स नॉट एंग्री बर्ड। सो क्योंकि एंग्री बर्ड्स इतना देखा है तो ये एंग्री ब्राइड से एंग्री बर्ड ज्यादा दिखता है। तो इन्होंने एक एंग्री ब्राइड नाम का एक गेम स्टार्ट किया है, सोशल मीडिया पेज पर इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। दैट इज ऑल्सो फॉर द सेम प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम है फॉर द डाउरी कल्चर एंड फॉर द चाइल्ड मैरिजेस। ठीक है, सो दे बेसिकली स्टार्ट एजुकेटिंग द पीपल। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैंपेनिंग जब भी होता है तो ये जागरूकता के लिए होता है, और ये जागरूक बना रहे हैं लोगों को, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। एंड डाउरी कितना ज्यादा, कितने लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ द डाउरी, दे आर शोइंग ऑल दूस थिंग्स। And this game is known as Angry Bride. So this is also one of the social thing which is done by Shaadi.com. ठीक है, उसके अलावा इनका और भी बहुत सारा मीडिया कैंपेन है, जैसे #fast for her and hashtag वो एक बात. So these kinds of thing which is done by the Shaadi.com. So it's not only about the marriages, but they are working for the social factor as well. And I already told you about what the challenges which is faced by the Shaadi.com, that they basically the mentality which the Indian people have, the Indian parents have, that is one of the biggest barrier for the Shaadi.com. And who are the competition nowadays? So we are able to see that whatever this particular website or this company is doing, there are multiple companies who are competing with it, like Jeevansathi.com, like Matrimony, yes. And these are the competitors, है ना? These are the competitors of this. अभी आप देख सकते हैं कि there are multiple companies which is working same whatever they are working. So this is the whole story about this Shaadi.com, and मतलब 1996 से it was started. अभी इनके पास लगभग 35 million users हैं और इन्होंने बहुत लोगों की शादी भी करवाई है, so many people. And ठीक है, I guess this information is enough for you all, that how it is working, like what is the revenue model they have. So they are basically getting the fund because of those plans and because of those packages, whatever they are provided, whatever the service they are providing, they are basically set the packages. There is a free system as well. So the person can basically use this as a free, but the so many services are not available at that time. मतलब जैसे कि आप देख सकते हो Naukri.com को भी यूज करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी सर्विस, क्योंकि आप प्रीमियम मेंबर नहीं है। ठीक है, so the same thing is happen here, okay, like they are providing this service free of cost, but the additional service you will not able to access. So I guess this point is clear to all of you. Yes, ma'am. How it started working and how it was. This story was very small. ठीक है? Yes, ma'am. And एक और चीज़ बताता हूँ कि it is they basically in starting ना, मतलब Anupam Mittal very much confused that this model is going to work or not. So basically he was in the experimental वाला stage में थे ये.
So he only did so the weekends or so. The primary attention remained on his employment. मतलब वो इन्होंने शुरू तो कर दिया लेकिन वो अपनी employment के बारे में सोच रहे थे. सारे पैसे इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था इस वेब मॉड्यूल डेवलपमेंट में. तो 2000 से 2008 के बीच में द इवेंट ऑकर्ड व्हेन द .com बबल बर्स्ट. अच्छा, एक .com बबल बर्स्ट की स्टोरी मैं बताऊंगी कि उस समय कुछ सिचुएशन ऐसा आया था जब बहुत सारे फर्म बैंकरप्ट हो गए थे. बैंकरप्ट मतलब कि एक साथ वो ना बिल्कुल लॉस में चले गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे, बैंक के पैसे तक चुकाने के पैसे नहीं थे. तो माइक्रो स्ट्रैटेजी में द बिजनेस जो था whom he was working at time, it was pre.com crisis worth of 50 billion and has entirely collapsed. और ये जब उस समय काम कर रहे थे ना, जिस कंपनी में, ये उस समय भी कंपनी में काम कर रहे थे, मतलब he was doing this business side by side. ठीक है, मतलब पूरा फोकस नहीं था लेकिन ये कोई कंपनी में काम कर रहे थे. दैट वाज बेसिकली वो आपका विक्टिम था किस चीज का, pre.com क्राइसिस था, और इनकी पूरी कंपनी डूब गई थी. तो फाइनली इन 2001 जो था वो वापस आ गए थे. 2001 में जब ये वापस आ गए तो फिर ही स्टार्टेड फोकसिंग, एंटायर इनका फोकस था ना, दैट वाज गो टू द shaadi.com कंपनी. ठीक है, सो आई गेस दिस होल स्टोरी इज क्लियर. हाँ, इन्वेस्टमेंट इन्होंने मैं बताया था कि अनुपम ने बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है. बिग बास्केट, इंटरैक्टिव एवेन्यूज, ओला कैब, फैब होटल्स, प्रॉप टाइगर, डॉक्स ऐप. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डॉक्स ऐप? तो बता सकते हो मुझे कि डॉक्स ऐप क्या है, और एवर यू हर्ड अबाउट दिस नेम और नॉट? एनीवन? सो कैन आई टेल यू? मैं बताऊं क्या करता है डॉक्स? मैम ये मेडिकल से रिलेटेड है, आई गेस डॉक्टर वगैरह का. वेरी गुड, वेरी गुड. बेसिकली डॉक्स Yes, ऐप ma'am. इज डॉक्स ऐप इज अ बैंगलोर बेस्ड, इट इज अ सर्विस, एप्लीकेशन सर्विस. एंड यहाँ पर क्या हो रहा है आपके कि जो डॉक्स ऐप है ना, द वर्चुअल मीटिंग और वर्चुअल ट्रीटमेंट इज डन बाय द डॉक्टर्स एंड जो आपके पेशेंट है, दे कैन टॉक टू ईच अदर. पेशेंट कैन tell about the problems with which problem he or she is suffering. So they are going to give the suggestion that can be regarding to test. See, there is a virtual interaction, so they cannot able to analyze with the stethoscope, that is the truth. But yes, if they will hear your problem, after hearing that, they are going to give the suggestion that what kind of they are going to give you the medicines, as well as they are suggesting you for the टेस्ट. अगर कोई टेस्ट है तो टेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं, एंड दे आर बेसिकली वर्किंग वर्चुअली. सो दैट इज अ डॉक्स ऐप एंड इट इज अ बेंगलुरु बेस्ड. द हेडक्वार्टर इज इन बैंगलोर एंड देयर आर मल्टीपल डॉक्टर्स हु आर बेसिकली वर्क अंडर दिस डॉक्स ऐप. मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. इट इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, और इसमें आपको यहाँ पर कुछ प्रीमियम प्लान्स लेना पड़ता है, लाइक गोल्ड प्लान्स यू कैन टेक वाया 999 एंड आफ्टर दैट यू विल गेट 1 year फ्री सब्सक्रिप्शन. ठीक है, so this is how docs app is working. So this is, ये जितने भी टॉप वेंचर कैपिटल हैं इन सब में अनुपम मित्तल ही इन्वेस्टेड. ठीक है, so I guess these points are totally clear to all of you, right? Yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, okay. So in the next class what we are going to understand, हम लोग अगले जो क्लास होगा उसमें हम लोग कोई नई स्टोरी के साथ है और मैं आऊंगी और हम लोग वो पढ़ेंगे. ठीक है, so anyone have any doubt in the franchising and this particular story? किसी को भी कुछ पूछना है? मैम, फ्रेंचाइजी अगर डोमिनोज का ले रहा हूँ मैं या कोई लेता है तो उसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मतलब कंपनी का और जो ऑनर है उस शॉप का? यहाँ पर मैं वही चीज आपको बताने वाली हूँ कि जो फ्रेंचाइजी होता है, ये फ्रेंचाइजिंग जो कॉन्सेप्ट है, इट इज अ टोटली कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्सेप्ट, राइट? So you have to make the contract, like the two parties के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, जब एग्रीमेंट को हम साइन कर देते हैं तो एक एग्रीमेंट रेडी होगा, वहां पर आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे. जैसे देखो मैंने बताया था कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, या तो आपको वन टाइम पेमेंट तो देना ही देना पड़ेगा, चाहे वो 20 लाख हो, 30 लाख हो, 50 लाख हो. उसके अलावा आपके स्टोर का कॉस्ट ये सब तो आप ही को हैंडल करना है, क्योंकि आप ही को वो एरिया चाहिए, लोकेशन वगैरह और चेयर्स वगैरह, और जो भी अगर आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये सारे प्रॉप्स और फर्नीचर्स की रिक्वायरमेंट है, वो आप अपना देखो. और जो अमाउंट होता है ना, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट, लाइक द 10% ईयरली, वट एवर यू आर अर्निंग, 1%, 2%, 3%, हार्डली 10%, दैट विल बी बेसिकली डिसाइडेड बाय बोथ पार्टी.
तो ये आप बिल्कुल मत सोचना, देखो डोमिनोज का आई जस्ट नीड टू चेक अबाउट इट, लाइक हाउ मच अमाउंट दे आर टेकिंग, लेकिन ये आपके एग्रीमेंट के थ्रू स्पेसिफाइड होता है। डोमिनोज की कंपनी को एकदम से ऐसे नहीं कहेगी अब चल पैसे निकाल, नो, दे आर नॉट गोइंग टू स्पीक इन दैट वे। दे विल बेसिकली डू ऑल दीज पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, उसके बाद उसमें आपका मेंशन होगा कि भाई आपको पूरे साल के 1% का प्रॉफिट आपको देना है, तो रॉयल्टी फीस जो होगी वो आपका डिसाइडेड होगा। युवराज समझ में आया? यस मैम। तो उसका जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है बता देती हूँ। रेवेन्यू होता है जो आपका टर्नओवर होता है पूरे साल का। जैसे अगर कंपनी ने आपका जो पर्टिकुलर रिटेल आउटलेट है उसने 2 करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर है, यानी 2 करोड़ रुपए की सेल हुई है। अब उस 2 करोड़ रुपए में आपका अगर रेवेन्यू है ये 2 करोड़, अब उसमें से आपकी 1 करोड़ जो है वो है प्रॉफिट मार्जिन, यानी आपने 1 करोड़ का सामान बेचा है 2 करोड़ में, तो 1 करोड़ जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है ना, उससे मान लीजिए उसने बोला भाई डोमिनोज ने कि 1% देना है, तो 1 करोड़ का 1% कितना हुआ? 1 लाख मैम। 1 करोड़ का परसेंट 1 लाख हुआ, so you have to pay 1 lakh rupees yearly, like this. So that will be decided or that will be determined in the contract only. So don't worry, वो कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन होगा, और कंपनी का एक पॉलिसीज होता है। मुझे ऐसा लगता है कि दे आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू एरिया, तो आपको एरिया देखना पड़ेगा कि पटना में वो फ्रेंचाइज का क्या ले रहे हैं। ठीक है युवराज? यस मैम, थैंक यू। ओके ओके, सो एनीवन हैव एनी डाउट? नो मैम। ओके, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि नेक्स्ट क्लास में कौन सी स्टोरी चलेगी एंटरप्रेन्योर की? मैम बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड, एनीवन एल्स? यस, ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को नहीं पता भी कि क्या करना चाहिए, क्या मैम करना है? जूम ऐप। जूम ऐप, गुड। यस मैम। जूम ऐप के लिए ठीक है, बैटल ग्राउंड भी करेंगे। जूम ऐप इसलिए भी बहुत लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है बिकॉज ऑफ वी आर टोटली बेस्ड, मतलब एजुकेशन एंड मीटिंग्स आर नाउ टोटली बेस्ड ऑन जूम। तो सी व्हाटएवर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये दोनों में से कोई एक टॉपिक रिपीट करेंगे, उसके बाद अगर वो नेक्स्ट क्लास में अगर एक टॉपिक नहीं हुआ तो उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके।